Hello friends, welcome. Today we are going to explain the phase rule. First, I will focus on some basic concept. In this picture, the reactant AB converts into product CD. After some time, at particular point, the reaction is stopped. At that point, the ratio of concentration of CD to that of AB is a constant. At that point, the rate of forward reaction and rate of backward reaction is the same. Then such a point is called as equilibrium. Therefore, equilibrium very simple. The state at which changes of system is stopped, then it is called as equilibrium. The equilibrium has two types. One is physical equilibrium and other is chemical equilibrium. The physical equilibrium is arises between the different phase of the same compound. In this picture, the ice is converted into water. The molecular formula of ice and water is same. Therefore, compound is same, but phase is different. One is another phase is liquid. That is an example of physical equilibrium. The chemical equilibrium is arises between the different compound. Maybe phase are same or different. फ्रेंड्स, सिस्टम क्या होती है? अगर इस पिक्चर के ऊपर फोकस किया, बीकर में मैंने एक कंपाउंड की स्टडी की तो वो हुई सिस्टम। या दोस्तों, बीकर में मैंने मिक्सचर ऑफ कंपाउंड लिया, सॉल्यूशन लिया, उसकी स्टडी मैं करता हूँ तो वो भी हो गई दोस्तों सिस्टम। बिकॉज सिस्टम इज अ सब्सटेंस और mixture of substance which is isolated in some way from the other substance. दोस्तों, the compound may be exist in solid form, liquid form, gaseous form or in plasma form. It is called as phase. The phase means it is a homogeneous part of a system that is physically distinct and mechanically separable from the other part of the system. Mechanically separable means separation can be done by hand picking or by filtration by separating funnel or by other method which cannot be affect the change in temperature, pressure and concentration in the equilibrium. दोस्तों, नंबर ऑफ फेज कैसे निकलते हैं इसके ऊपर फोकस करने वाले। एस मोनोक्लिनिक इज इक्विलिब्रियम विद एस रोम्बिक। दोस्तों, एस मोनोक्लिनिक और एस रोम्बिक ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं जिसे हम सर्कुलर के आयोट्रॉप कहते हैं। दोस्तों, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो नंबर ऑफ फेज इज इक्वल टू 2 बिकॉज बोथ सॉलिड कंपाउंड हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल properties, hence they are not miscible to each other, cannot be give same homogeneous part, hence it gives heterogeneous part, gives considered as a two phase. Consider the mixture of mercury, water and CCl4. All these liquids are immiscible to each other, therefore number of phase equal to 3. If any one liquid is converted into gaseous form, at that time the number of phase becomes 4. दोस्तों, ice is equilibrium with water, is equilibrium with vapor. The compound is same, therefore number of phase is equal to 3 because ice present in the solid form, water present in the liquid form and gas in the gaseous form. The calcium carbonate is decomposed to form calcium oxide solid plus carbon dioxide gas. The two different solids are immiscible to each other. Therefore, use this two phase and one phase is carbon dioxide. Therefore, total number of phases 3. Now, ammonium chloride is decomposed to form ammonia gas and HCl gas. The gaseous mixture is always homogeneous. Therefore, gas considers only one phase and other phase is solid. Therefore, number of phase equal to 2. Now friends, phase is also defined by another ways.
any homogeneous part of a system having all physical and chemical properties are same throughout. Now, what is mean of component? दोस्तों, कंपोनेंट के ऊपर फोकस करने के पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। समझो गैसियस मिक्सचर है ए और बी। अगर मिक्सचर में मैंने आपसे कहा ए कंपाउंड 20% है तो बी कंपाउंड कितना होना चाहिए दोस्तों? 80% होना चाहिए। अगर ए कंपाउंड 40% होता है तो बी कंपाउंड 60% होता है। मतलब इस गैसियस फेज में का अगर आपको एक कंपाउंड का कॉम्पोजिशन पता होता है तो आप दूसरे कंपाउंड का कॉम्पोजिशन इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मिनिमम नंबर ऑफ कंपाउंड है जो कॉम्पोजिशन पूरे फेज का, पूरे सिस्टम का एक्सप्लेन कर सकता है, उसको हम कंपोनेंट कहते हैं दोस्तों। उस कंपाउंड की वैल्यू ये इंडिपेंडेंट होती है दोस्तों, और उसके ऊपर दूसरे कंपाउंड की वैल्यू डिपेंडेंट होती है दोस्तों। मतलब ये मॉलिक्यूलर बेसिस होता है दोस्तों। इट इज डिफाइंड एज अ मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल and chemical distinct constituent necessary to desirable the composition of each phase of this system. It is also defined by another ways. It is a minimum number of molecular bases. In terms, the composition of all phase may be quantitatively expressed. इस तरह से दोस्तों हम कंपोनेंट डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों, कंपोनेंट कैसा निकाल सकते हैं इसके ऊपर फोकस करने वाले। कंसीडर इक्विलिब्रियम विद एस मोनोक्लिनिक विद एस रोम्बिक। दोस्तों, कंपाउंड तो यहाँ सेम है, मतलब सल्फर है, इसलिए नंबर ऑफ कंपोनेंट यहाँ कितना होना चाहिए? 1। अगर दोस्तों मर्क्यूरी लिक्विड वाटर में मिक्स करते हैं, CCl4 में मिक्स करते हैं, तो दोस्तों 3 फेज होते हैं और हर फेज का कॉम्पोजिशन एक्सप्लेन करने के लिए मर्क्यूरी का कॉम्पोजिशन पता होना जरूरी है, वाटर का कॉम्पोजिशन पता होना जरूरी है और CCl4 का भी कॉम्पोजिशन पता होना जरूरी है। तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट फॉर दिस इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 3। नाउ आइस is equilibrium with water. Water is equilibrium with vapor. The compound is same, but phase are different. Therefore, same compound gives same component. Therefore, total number of component is equal to 1. During decomposition of calcium carbonate to form calcium oxide solid and carbon dioxide gas. दोस्तों, जब भी डिकम्पोजिशन की रिएक्शन होती है तो डिकम्पोजिशन में कौन सा कंपाउंड मिलता है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। इससे दोस्तों यहाँ 2 फेज है और हर फेज का कॉम्पोजिशन एक्सप्लेन करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का कॉम्पोजिशन पता होना जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्पोजिशन पता होना जरूरी है। इसके ऊपर से हम तीसरे फेज का कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं दोस्तों। इसलिए यहाँ नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए दोस्तों? 2 हो गए। दोस्तों, अगर अमोनियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन लेते हैं तो अमोनिया गैस और HCl गैस फॉर्म होता है दोस्तों। अगर हमें अमोनिया गैस का कंपोजिशन पता हो तो हम HCl और अमोनियम क्लोराइड का कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट फॉर दिस इक्विलिब्रियम इज 1। दोस्तों, यह थोड़ी परेशानी आ सकती है समझने के लिए, तो इसके ऊपर हम फोकस करते हैं वापस। इफ अमोनियम क्लोराइड इज इक्विलिब्रियम विद अमोनियम गैस एंड HCl गैस बिफोर द कंपोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, the considered number of moles of ammonium chloride is 1. At that time, no any molecules of ammonia and HCl gas is present. Consider the X molecules is decomposed. Therefore, number of moles of ammonium chloride is 1 minus X. Therefore, ammonia equal to X and HCl is equal to X. Therefore, value of X is known. Therefore, easily determine the composition of all phase or all compound, ammonium chloride, ammonia and HCl. तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट फॉर दिस इक्विलिब्रियम इज 1। दोस्तों, अगर इस इक्विलिब्रियम में हम एक्स्ट्रा अमोनिया गैस या HCl गैस ऐड करते हैं तो इसका नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 हो जाता है, क्योंकि हमने कितना HCl अमोनिया गैस ऐड किया है उसके ऊपर भी बाकी के कंपाउंड का कॉम्पोजिशन डिपेंड होता है। तो एट दैट टाइम द नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू 2। पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी क्या होती है दोस्तों? पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी
मतलब द चेन ऑफ रेट ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी with respect to number of moles at the constant pressure and temperature. तो दोस्तों पहले हम गिब्स फ्री एनर्जी इसके ऊपर फोकस करेंगे. इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मीन्स it depends on the number of moles of a substance, temperature and pressure. Hence, the Gibbs free energy is a function of temperature, pressure and number of moles. Consider the system containing at number of components. Suppose G is a function of temperature, pressure and number of moles from compound 1 to I compound. तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हो the chain of Gibbs energy that is equal to the chain of Gibbs energy at the constant pressure and number of moles with respect to chain of temperature plus the chain of Gibbs energy with respect to pressure at that time, temperature and moles of the other compound considered as a constant. The chain of Gibbs energy at number of moles of the compound, with respect to number of moles of the compound first at temperature, pressure and number of moles of the other compound is constant. इस तरह से दोस्तों हम चेन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं. ये फॉर्मूला हम एन आई तक लिख सकते हैं दोस्तों. dg by dt at constant pressure at constant number of moles of the other compound plus chain of Gibbs free energy with respect to pressure, other terms is constant. Chain of Gibbs free energy with respect to number of moles of the compound first, other are the constant. ऐसा हम I तक लिख सकते हैं दोस्तों. तो दोस्तों तो ये जो चेन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स उसको ही हम पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी कहते हैं दोस्तों. तो पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी इज डिनोटेड बाय dg upon the ni at constant temperature, pressure and number of moles of the other compound that equal to gi. Therefore gi is called partial molar free energy. It is defined as the chemical the chain in free energy of a system at a constant temperature, pressure due to addition of one of the I constituent to a such a large quantity of the mixture that the composition of the system practically remain unchanged. दोस्तों इक्विलिब्रियम में क्या होता है दोस्तों? पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी of same constituent may be present in the same phase or different phase is always same. दोस्तों डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है दोस्तों? डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ऐसे वेरिएबल होते हैं दोस्तों जो पूरी सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों. कम से कम वेरिएबल अगर हमने लिया तो पूरी सिस्टम डिफाइन करने के लिए कितने वेरिएबल की जरूरत होती है उसको कहते हैं दोस्तों डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये में भी टेम्परेचर, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन के रूप में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों. तो इट इज डिफाइंड एज the least number of variables, that is concentration, pressure and temperature, which must be specified to show that the remaining variables are fixed automatically. The system is completely defined. दोस्तों आगे का पॉइंट सीखने के पहले हम कुछ मैथमेटिकल कंक्लूजन निकालते हैं. जैसे कि ये इक्वेशन दिया दोस्तों 2x + 2y = 4 और 4x + 3y = 4. दोस्तों हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. नंबर ऑफ इक्वेशन यहाँ कितने दोस्तों 2 है और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने दोस्तों 2 है. x और y को हम वेरिएबल कहते हैं दोस्तों. अगर नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल सेम होते हैं दोस्तों तो हम इक्वेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों. तो दोस्तों यहाँ x की वैल्यू -2 आती है और y की वैल्यू 4 आती है. मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ फिक्स है, कोई भी वैल्यू एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है. लेकिन दोस्तों ये एक ही इक्वेशन होता है. समझो 2x + 2y = 40. इस समय हमें x और y की वैल्यू एक साथ निकाल नहीं सकते. अगर हमने x की वैल्यू कंसीडर की तो उसके ऊपर से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, या हमने y की वैल्यू कंसीडर की तो उसके ऊपर से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. मतलब एक वेरिएबल ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो दूसरा वेरिएबल ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है.
दोस्तों, वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल। दोस्तों, अगर हमने तीन वेरिएबल का इक्वेशन कंसिडर किया, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, तो दोस्तों अगर इसमें से एक वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं तो दूसरी अरिथमेटिक हम डिटरमाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना हो गया, एक, और डिपेंडेंट वेरिएबल कितना हो गया दोस्तों, दो हो गए। तो हाउ टू डिटरमाइन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? इट इज वेरी सिंपल। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन। ये कंक्लूजन हमने निकाल लिया दोस्तों। तो इस कंक्लूजन के जरिए हम फेज रूल प्रूव करने वाले दोस्तों। लेकिन फेज रूल क्या होता है दोस्तों? फेज रूल मीन्स f इक्वल टू c माइनस p प्लस 2। f is the degree of freedom, c is the component and p is the number of phase। तो दोस्तों ये फेज रूल होता है। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसके ऊपर अभी हम फोकस करने वाले दोस्तों। कंसिडर द मैथमेटिकल कंक्लूजन। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन। दिस फॉर्मूला कंसिडर इक्वेशन नंबर 1। दोस्तों डिग्री ऑफ फ्रीडम ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं दोस्तों। इफ फेज कंटेनिंग c component, then number of independent variable is c minus 1। दोस्तों अगर एक फेज में दो कंपाउंड होते तो हमें एक कंपाउंड का अगर कॉन्सेंट्रेशन पता होता है तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं। अगर फेज में तीन कंपाउंड होते हैं दोस्तों, अगर हमें दो कंपाउंड का कॉम्पोजिशन पता हो तो हमें तीसरे का निकाल सकते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए? c minus 1। If system containing p number of phase, then number of variable will be p into c minus 1। एक फेज के लिए c minus 1, तो p फेज के लिए कितना होगा दोस्तों? p into c minus 1। Now beside this variable, pressure and temperature are two additional independent variable। हम टेम्परेचर और प्रेशर या दो एडिशनल वेरिएबल कंसिडर करते हैं दोस्तों। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना होगा दोस्तों? p into c minus 1 plus 2, दैट इज कंसिडर इक्वेशन नंबर 2। मतलब दोस्तों देखो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम f की वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल पता होना चाहिए, जो कि हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया है, फॉर्मूला नंबर 2 से। अभी नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन हमें निकालना है। नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन मतलब नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम हमें निकालना है दोस्तों। अगर एक कंपोनेंट होता है और दो फेज में होता है तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कितना पॉसिबल दोस्तों? ओनली 1, दैट इज सॉलिड इनटू लिक्विड। अगर दोस्तों एक कंपोनेंट थ्री फेज में होता है तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कितना पॉसिबल होता है दोस्तों? वन इज सॉलिड और अदर इज लिक्विड, therefore solid to liquid one equilibrium and another is liquid to vapor, therefore two equilibrium is possible। मतलब जितने भी फेज होंगे दोस्तों उसका -1 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होते हैं? पॉसिबल होते हैं दोस्तों। therefore कंक्लूजन इज नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इज p minus 1। दोस्तों समझो सिस्टम में c नंबर ऑफ कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट के लिए p minus 1 इक्विलिब्रियम है, तो c कंपोनेंट के लिए कितना इक्विलिब्रियम हो गया? c into p minus 1। therefore that is considered formula number 3। दोस्तों हमारा फॉर्मूला नंबर 1 था नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन। अभी हमने यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल निकाल लिया, दैट इज p into c minus 1 plus 2 and number of available equation means number of available equilibrium that is minus c into p minus 1। तो दोस्तों अभी हम ये सॉल्व करते हैं। multiply the p into bracket, therefore becomes pc minus p plus 2 c into p, that is minus pc, minus minus plus, that is plus c, therefore pc will be cancelled out, therefore remaining is c minus p plus 2। इस तरह से दोस्तों हमने फेज रूल प्रूव कर दिया है दोस्तों इक्विलिब्रियम के अलग अलग टाइप हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मोमेंट। The first is true equilibrium. The consider ice is converted into water and water is converted into ice to become the equilibrium। दोस्तों अगर आइस को हम हीट करते हैं तो उसका वाटर में कन्वर्जन होता है। अगर हम वाटर को कूल करते हैं दोस्तों तो उसका कन्वर्जन आइस में होता है दोस्तों।
मतलब ये इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन में मूव हो सकता है दोस्तों। तो इस इक्विलिब्रियम को हम ट्रू इक्विलिब्रियम कहते हैं दोस्तों। देखो ट्रू इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम द बोथ साइड, फ्रॉम आइस एज वेल एज फ्रॉम लिक्विड वाटर। Thus equilibrium is called as true equilibrium. The second type, that is called metastable equilibrium. System containing liquid water. By cooling the water carefully at constant pressure, then at each temperature liquid water is in with vapor and it is a liquid at below temperature of 0 degree Celsius. Such a liquid is called as super cool liquid. दोस्तों अगर लिक्विड को हम कूल करते हैं और टेम्परेचर हम कम करते हैं लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो लिक्विड वाटर ये लिक्विड फॉर्म में ही होता है। तो इस लिक्विड को हम सुपर कूल लिक्विड कहते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर हमने आइस हीट किया तो आइस ये कन्वर्जन वाटर में होता है। अगर प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा तो भी आइस का कन्वर्जन ये वाटर में होता है। मतलब ये इक्विलिब्रियम एक साइड से होता है तो दूसरे साइड से नहीं होता है दोस्तों। Such equilibrium is called as metastable equilibrium. This equilibrium is attained from one side only. This is because of we do not have a superheated ice. Then such equilibrium is a metastable equilibrium. Non-equilibrium. This is also called unstable equilibrium. Consider the system containing saturated solution of NaCl. अगर दोस्तों NaCl के सैचुरेटेड सोल्यूशन में हमने अगर फिर से NaCl मिक्स किया तो अभी वो सोल्यूबल हो नहीं सकता, मतलब अभी फिर से इक्विलिब्रियम मिल नहीं सकता। एट दैट टाइम दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ NaCl become very small. However, the state of equilibrium will not be attained until saturation limit is reached. The state of solution prior to saturation is said to be unstable equilibrium. दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटर सिस्टम और सरफेस सिस्टम के ऊपर फोकस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।